Greetings of the day to everyone. Today we are going to discuss a very important topic. Moreover, it's an interesting topic. As you can see in my background, there is some military exercises going on. So the topic of discussion is joint military exercises. Now, before going into the topic, इस टॉपिक में जाने से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते क्या है, what are they and why they are conducted. Okay, so you can see in this beautiful background, so there are armed personnel training. Okay, they are doing various military exercises. Now what we will see कि भाई ये joint military exercises है क्या. Okay, we'll see to it. Now when you talk about joint military exercises are collaborative training activities conducted by armed forces of two or more nations. So what exactly is joint military exercises? When armed forces of two or more nations, it can be two nations or it can be two or more nations, come together and do some collaborative activity. Okay, so armed forces of two or more nations come together and do some collaborative activity, and that is called as joint military exercises. Okay, so for example, the armed forces from India and Russia coming together, doing some practices, doing some training, that is part of joint military exercise. Armed forces of India, Australia, Japan and USA coming together, doing some collaborative efforts, जिससे हर जो पर्सनल्स है उस आर्म फोर्स में उनका इंप्रूवमेंट हो, उनका नॉलेज इंप्रूव हो, उनका स्किल्स इंप्रूवमेंट हो, तो उसको क्या कहते हैं? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस. दिस exercises aim to enhance interoperability, share knowledge and improve operational capabilities. अब joint military exercises से basically फायदा क्या होता है? जब भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करवाते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया से कुछ मिलिट्री पर्सनल्स आए और चाइना से कुछ मिलिट्री पर्सनल्स आए, अब जब दोनों वो कोलैबोरेटिव तरीके से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कैरी आउट करेंगे तो क्या होगा? दोनों देश के आर्म फोर्सेस का स्किल बेहतर होता जाएगा. क्या होगा? दोनों देश के आर्म पर्सनल्स का स्किल बेहतर हो जाएगा और दूसरे देश का टेक्नोलॉजी और आर्म्ड वेपन्स के बारे में हमें एक आइडिया लगेगा. सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक यूटिलिटी ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस. तो नॉलेज शेयर होता है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज बढ़िया होता है एंड इंटरऑपरेबिलिटी होता है. दैट मींस ऑन एक कोऑर्डिनेशन बढ़ता है. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस. जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस आर बेसिकली व्हेन द आर्म्ड फोर्सेस और मिलिट्री पर्सनल्स ऑफ टू नेशन कम टुगेदर एंड डू सम coordinating effort to improve the military skills, the knowledge, improve the capabilities of each other. Okay, now coming into the point, significance of joint military exercises. What are the significance of joint military exercises? Okay, first, when two nations engage in joint military exercises, strengthen bilateral and military relationship. जब दो देश आपस में मिलकर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, उनके बीच का बायलैटरल और मिलिट्री रिलेशंस बेहतर होता है. They build trust and enhance cooperation among participating nations. For example, if India and Russia is coming together to have a joint military exercise, अगर इंडिया, भारत और रशिया साथ में आकर एक joint military exercise कर रहा है, that means जब हम अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं और वो अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, दोनों देश के बीच में एक कॉपरेशन आता है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट आता है और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट आता है. एंड देयर दैट इज वेरी गुड फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस. ओके, नाउ definitely skills and knowledge get enhanced. Armies exchange strategies, tactics, techniques to combat threats. जब जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, हम दूसरे देश का स्ट्रैटेजीज के बारे में, देखो कोई भी देश है अपने पूरे स्ट्रैटेजी को कभी भी रिवील नहीं करेगा, बट काफी हद तक हमें दूसरे देश के मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, आइडियाज, उनकी टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन के बारे में एक हमें आइडिया लगता है. दूसरा, हम दूसरे देश के वॉरफेयर टैक्टिक्स को भी सीखते हैं. ठीक है, हम दूसरे देश के वॉरफेयर टैक्टिक्स को सीखते हैं. हम ये भी सीखते हैं कि वो एक पर्टिकुलर टेरेन में अपने आप को कैसे एकमलाइज कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल,
अगर हम रशिया के साथ एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इंडियन आर्मी को बहुत कुछ ये सीखने को मिलेगा कि कोल्ड क्लाइमेट में रशियन फोर्सेस अपने आप को एकम्बलाइज कैसे करवा रहे हैं, उनके क्लोथिंग पैटर्न क्या है, उनके शू क्या किस मटेरियल से बना है, ठीक है, किस टाइप के लेदर से बना है, वो किस तरीके से अपने आप को एकम्बलाइज करवाते हैं कोल्ड वेदर में। इससे हमारे आर्म फोर्स पर्सनल्स जो लद्दाख, कश्मीर रीजन, सियाचिन रीजन में है, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द टेक्निक्स के बारे में पता चलता है और हाउ टू कॉम्पैक्ट थ्रेड्स, की थ्रेड्स को अपने थ्रेड्स को कैसे कॉम्पैक्ट कर सकते हैं उसके बारे में पता चलता है। नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरपोरेबिलिटी, फास्टर कोऑर्डिनेशन इन जॉइंट ऑपरेशंस। अब जैसे ही आप जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस करते हैं, आप जॉइंट मिलिट्री प्रैक्टिसेस करते हैं और अपनी स्किल्स को एनहांस करने की कोशिश करते हैं, कभी आपको एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ गया, जैसे फॉर एग्जांपल दो देश हैं, फॉर एग्जांपल हम फिर से रशिया का ही नाम लेते हैं, रशिया और इंडिया ने फॉर एग्जांपल एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करा है, रशिया इंडिया ने एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करा है दोनों देश ने मिलकर। अब फॉर एग्जांपल यूएन बोलता है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजता है अफ्रीकन कंट्रीज और जो भी सीरिया जैसे बहुत ज़्यादा सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग जोन्स है। अब यूएन ये बोलता है कि भाई इंडिया और रशिया के मिलिट्री और पर्सनल्स को बुलाकर बोलता है कि आप पीस कीपिंग फोर्स में का भाग बनते हुए इस कॉन्फ्लिक्ट जोन पे जाओ। जब पीस कीपिंग फोर्स का भाग बनते हैं तो आपको साथ में काम करना है, तो क्या होता है कि जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन से क्या होता है कि आपका कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाता है। हाँ, जब आप अगर ऐसे ही ट्रेनिंग करोगे, साथ में ट्रेनिंग करोगे, जब ऐसे ऑपरेशंस में, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस में साथ जाओगे या कोई डिजास्टर रिलीफ में साथ जाओगे तो आपका कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाएगा। ठीक है, देखो, फॉस्टर कोऑर्डिनेशन इन जॉइंट ऑपरेशन, ऐसा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करोगे तो जॉइंट ऑपरेशन जब करोगे तो आपका कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, पीस कीपिंग में आप फोर्स का भाग बन के जाओगे तो आपको वहां हेल्प करेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, काउंटर टेररिज्म में हेल्प करेगा। और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जब भी हम करते हैं, जब भी हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमें एक कॉम्पैक्ट सिचुएशन में क्या हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि आर वी रेडी फॉर अ कॉम्पैक्ट बैटल। They evaluate the readiness and adaptability of troops in various terrains and scenarios. अब जब भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है आपको सिनेरियोज दिए जाते हैं, वेरियस टेराइन्स में एक्सरसाइज होता है, तो आपको ये एक अंदाजा लग जाता है क्या हम रेडी हैं, वाकई रेडी हैं कि इस एक्सरसाइज में आप अपने कॉम्पैक्टिबिलिटी स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं, आप अपने कैपेबिलिटीज को टेस्ट कर सकते हैं। इतने सालों से जो आप प्रोसेस करते हुए आए हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, उसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली जब जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं एक डिफेंस डिप्लोमेसी बढ़ता है, एक फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन फॉरेन कंट्रीज बढ़ता है। दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। नाउ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज समथिंग व्हेन टू और मोर कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर टू शेयर देयर knowledge, share their skills and everything। like देखो, everything नहीं बोल सकते क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइजेस में भी काफी सोच समझ के अपने स्किल्स और नॉलेज को शेयर किया जाता है, बट काफी हद तक आपको जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से हेल्प मिलता है। नाउ द टॉपिक इज लाइक इंडिया है एज अ कंट्री हैज बीन कंडक्टिंग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस फॉर इयर्स एंड इयर्स। हम बहुत सारे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस का पार्ट बन चुके हैं सालों से। अब मैं आपको कुछ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस दिखाता हूं जो इंडिया जिसमें इंडिया पार्ट बना है। फॉर एग्जाम्पल एक कुछ आर्मी एक्सरसाइजेस है, जैसे युद्ध अभ्यास, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया यूएसए के साथ मिलकर करता है। ठीक है, हैंड इन हैंड जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया चाइना के साथ मिलकर करता है। संप्रीति एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो हम बांग्लादेश के साथ मिलकर करते हैं। मित्र शक्ति एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो हम श्रीलंका के साथ मिलकर करते हैं। अब ये सारे जो मैंने ऊपर लिखे हैं, दिस आर आर्मी एक्सरसाइजेस। बेशक वो युद्ध अभ्यास हो, हैंड इन हैंड हो, संप्रीति हो या मित्र शक्ति हो, दिस आर आर्म्ड एक्सरसाइजेस। अगर आप इसी टाइप पे नेवी एक्सरसाइजेस की बात करो, अगर नेवल एक्सरसाइज की बात करो तो इंडिया काफी सारे नेवल एक्सरसाइज का भी भाग बनता है। फॉर एग्जांपल मलाबार एक्सरसाइज, मलाबार एक्सरसाइज यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये मिलकर करते हैं, तो इंडिया इसका भी पार्ट बनता है। वरुणा जो हम फ्रांस के साथ मिलकर करते हैं, ठीक है, ये नेवी एक्सरसाइज की बात हो रही है। सिलनेक्स जो हम श्रीलंका के साथ मिलकर करते हैं, एंड सिम्बेक्स जो हम सिंगापुर के साथ मिलकर करते हैं। सो ये सारे आपके हो गए नेवल एक्सरसाइज जो हमारी नेवी जॉइंट एक्सरसाइज करती है। फिर आप कुछ एयरफोर्स एक्सरसाइज भी करते हो, जैसे इंद्रधनुष जो हम यूके के साथ करते हैं और गरुड़ा जो हम फ्रांस के साथ करते हैं। ठीक है, ये सारे आपके हो गए एयरफोर्स एक्सरसाइज।
ठीक है. So India has been taking part in joint military exercise over the years, and to a very large extent this military exercise has helped Indian armed forces to improve their military capability, to improve their skills, to improve their knowledge, and obviously to learn how to get acclimatized with various climatic conditions, and how to combat various threats, how to combat disaster, and all the skills we have been adhering over the years. Now in the month of December, exactly to be precise, on the date of December 31st, India are indulging themselves in a new joint military exercise. एक नए joint military exercise में India अपने आप को indulge कर रहा है. Now let us see which is the exercise. India is indulging itself, or India is sending its armed personals for a joint military exercise called as Surya Kiran. ठीक है, सूर्य किरण 2024 में इंडिया अपने आर्म्ड पर्सनल्स को भेज रहा है. ना इंडिया ने कितने आर्म्ड पर्सनल्स को भेजा है? 334 लोग इंडियन आर्मी पर्सनल हैज बीन डिपार्टेड फॉर नेपाल टू पार्टिसिपेट इन 18th बैटालियन लेवल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज. तो टोटली कितने लोग जा रहे हैं? 334 लोग जा रहे हैं. किसके? इंडियन आर्मी के. 334 पीपल ऑफ इंडियन आर्मी हैज डिपार्टेड टू नेपाल. वो लोग कहां गए हैं? नेपाल गए हैं. किस चीज के लिए गए हैं? ठीक है, किस चीज के लिए गए? एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्ट लेने के लिए गए हैं. ठीक है, अब ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? दिस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज कॉल्ड एज सूर्य किरण. ठीक है, सूर्य किरण. नाउ द टॉपिक इज सूर्य किरण इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन नेपाल एंड इंडिया. तो इस बार का जो सूर्य किरण एक्सरसाइज हो रहा है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है, कहां पर हो रहा है? नेपाल में हो रहा है. ठीक है, और इंडिया की तरफ से 334 आर्म्ड पर्सनल्स इस एक्सरसाइज में पार्ट लेने के लिए जा रहे हैं. नाउ अब ये एक्सरसाइज नेपाल में किस लोकेशन पर होगा, समझने की कोशिश करिए. दिस एक्सरसाइज इज शेड्यूल्ड टू ऑकर इन सैलजहांदी, नेपाल. सैलजहांदी एक लोकेशन है नेपाल में, वहां पर ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगा. तो इंडियन आर्म फोर्स यहां से ऑलरेडी रवाना हो चुके हैं 31 दिसंबर, जो कि एग्जैक्टली इट इज टुमारो. सो यहां से मतलब ये एक्सरसाइज होगा. सो ये 31 दिसंबर से जनवरी 13, 2025 तक ये एक्सरसाइज होगा. सो obviously it's a joint military exercise between India and Nepal that would happen from 31st December to January 13, 2025, and it's an annual event that alternates between India and Nepal. So अगर 2024 में 2025 में जो इवेंट है वो नेपाल में हो रहा है, सैलजहांदी नेपाल में हो रहा है, तो अगले साल का जो इवेंट है, ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है सूर्य किरण, वो भारत में होगा. ठीक है, ये क्लियर हो गया. अब आगे चलते हैं. नाउ लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन. ऑब्वियसली 334 पर्सनल जा रहे हैं. कौन सा बटालियन भारत की तरफ से जाएगा, कौन भारत को रिप्रेजेंट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द इंडियन आर्मीज कंटीजेंट इज लेड बाय बटालियन फ्रॉम 11th गूरखा राइफल्स. ठीक है, इंडियन आर्मी का जो कंटीजेंट है उसको 11th गूरखा राइफल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और 11th गूरखा राइफल्स का बटालियन उसको लीड कर रहा है. ठीक है, नेपाल की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सिरजुंग बटालियन. श्रीजुंग बटालियन जो है. सो इंडियन आर्मी की तरफ से कौन आ रहा है? गूरखा राइफल्स जा रहा है. गूरखा राइफल्स का बटालियन लीड करेगा, और भी पर्सनल्स होंगे, और नेपाल की तरफ से श्रीजुंग बटालियन ये लीड करेगा. दिस कोलैबोरेशन शोकेसेस द कमिटमेंट ऑफ बोथ नेशंस टू मिलिट्री पार्टनरशिप एंड ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस. अब ये कोलैबोरेशन जो है, जो इंडिया और नेपाल के बीच का है, ये एक कमिटमेंट दिखाता है दोनों के बीच का, एक कॉपरेशन दिखाता है दोनों देश के बीच का. ठीक है ना. Objectives of Surya Kiran. Exercise Surya Kiran will aim to enhance cooperation in several areas. सूर्य किरण के वजह से कुछ एरियाज में कॉपरेशन बढ़ जाएगा, जैसे जंगल वॉरफेयर. दोनों देश के आर्म पर्सनल्स को बहुत सारे डिफिकल्ट टेरेन्स में वॉरफेयर करना पड़ता है. उसमें से एक जो मेजर एरिया है दैट इज जंगल एरियाज में. उसमें कैसे अपने आप को रेडी करना है, उसमें अपने आप को कॉम्पैक्ट करना कैसा है, हम सूर्य किरण से, एक्सरसाइज सूर्य किरण से हमें उसका एक बेसिक आइडिया लग जाएगा. काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस. ठीक है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन माउंटेनियस रीजन. एक तो जंगल एरिया में कैसे ऑपरेशन करना है, माउंटेनियस एरियाज में कैसे ऑपरेशन करना है, या डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स, या कोई डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स को कैरी आउट करना है, उसका हम एक दूसरे से नॉलेज शेयर कर सकते हैं. ठीक है, अब ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में भी लिखा है दैट टू नेशन शुड पार्टिसिपेट, कोऑर्डिनेट इन ऑर्डर टू एनहांस देयर मिलिट्री स्किल्स, एनहांस देयर
कॉम्पैक्टिबिलिटी स्किल्स, एंड डेफिनेटली ये भी लिखा है कि दोनों देश को डिजास्टर रिलीफ के लिए बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, तो वो यहां से हमें मिल जाएगा. वी विल ऑल्सो, द एक्सरसाइज विल ऑल्सो फोकस ऑन इंप्रूविंग रेडीनेस एंड मेडिकल ट्रेनिंग. आप कितना रेडी है, कित हद तक किसी ऑपरेशन के लिए रेडी है, और कितना आपका मेडिकल ट्रेनिंग, मतलब मेडिकल ट्रेनिंग आप कैसे एक वॉरफेयर फ्रंट में, इफ देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी हाउ विल यू कॉम्पैक्ट इट, उसकी वो भी चीज आपको यहां से मिल जाएगा. ठीक है. नाउ key training areas will be include aviation skills and environmental conservation skills. Aviation skills, compactability skills, environmental conservation skills, इस सब चीज में ये आपको बेहतर बनाएंगे, ये जब सूर्य किरण जो है. अब ये क्यों हो पाए आप समझिए. ये एक्सरसाइज इस बार बहुत अर्जेंटली अरेंज कैसे हो पाए ये भी समझाता हूं मैं. एक इंडियन आर्मी के जनरल है उपेंद्र द्विवेदी साहब. उपेंद्र द्विवेदी साहब कुछ टाइम पहले नेपाल गए थे, और नेपाल के आर्मी के चीफ जनरल अशोक राज साहब ये भारत आए थे. जब ये नेपाल गए थे तो एक डिप्लोमेसी हुआ था, और अब वो यहां पर आए थे, एक गुड कोऑर्डिनेटिव रिलेशनशिप हुआ था. तो उसमें ये डिसाइड करा था कि दोनों देश के आर्म्ड पर्सनल्स एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करवाएंगे जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोलैबोरेशन के बेसिस पे होगा. नाउ ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि ऑब्वियसली दोनों देश जब कॉम्पैक्ट करेंगे, आपस में मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे, तो दोनों देश के स्किल्स बेहतर हो जाएंगे, कैपेबिलिटीज बेहतर हो जाएंगी. डिफिकल्ट टेरेन्स में ये लोग मतलब डिफिकल्ट टेरेन्स में कैसे कॉम्पैक्ट करना है वो भी होगा. डिजास्टर रिलीफ, मेडिकल इमरजेंसी को कैसे मीट करना है, इन सारी बात को होगा. इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है. ठीक है, भारत की तरफ से 11th गूर्खा राइफल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सिरजुंग बटालियन नेपाल की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा है. आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.